Hi everyone, my name is Twinkle and welcome back to my YouTube channel. In today's video, I'm going to be sharing with you tips, tricks and basically a mini guide on how to buy and how to select and drape all the important things that you need to keep in mind if you're going to attend an interview that requires you to wear a sari, the Indian traditional outfit. So if you are going to be attending an interview that asks you to wear one, then keep on watching. So let's come down to the most important thing, being that do not be very experimental and make sure that you're comfortable with what you're wearing. Since you're going to be attending an interview, whether it's for an aviation, for an airline or for a hospitality industry or a hotel, something that you're going for an interview, we all want to be comfortable. We don't want to be experimental at all. And something that I want to give you as a tip before we start this video is, if it's for an interview, make sure you keep two things in mind. That first of all, your approach should be conservative, not glamorous at all. So wear and select things that do not draw attention towards you. You should blend in, you should be simple, conservative, modest, and you should look smart as well as formal. The second most important thing is, because it is an attire for an interview, you have to make sure that you drape it really well, which means practice. So you should be able to either drape it very well, or if you're learning, if you have help, make sure all of that is done well in advance. Either you get a professional draper if you go out to get it draped, or you have someone as a help in your family. Or सबसे बढ़िया बात तो अगर if you know how to drape a sari yourself, well and good, do it, practice it, check the sari out, try to wear it with heels and then have a walk, so that you know how the sari is going to behave and how your walk is going to be for the next day. We don't need any surprises for sure. So let's come on to the most important thing, कि अगर आपके पास साड़ी है या नहीं है. If you don't have a sari, then I'm going to tell you what fabrics you can choose. और अगर already है, तो here are a few fabrics that you should choose from and some that you should absolutely avoid. So cotton being at the top of the list, second being linen या सिल्क. बहुत सारे टाइप्स के सिल्क आते हैं, टसर सिल्क एक्सेट्रा, कोई भी सिल्क ले सकते हैं. क्रेप की साड़ीज़ ले सकते हैं. आई थिंक दीज आर वेरी वेरी कॉमन एंड सेफ ऑप्शंस. समथिंग विच इज़ वेरी फैंसी या पार्टी वेयर है, वो बिल्कुल अवॉइड करना है. जो फ्लोई फैब्रिक्स हैं, देर आर नॉट ईजी टू हैंडल, जिसको आप संभाल नहीं सकते. देयर इज अ लॉट ऑफ party wear feel attached to it. The fabrics being organza, net की साड़ीज़ होती हैं, शिफॉन साड़ीज़, जॉर्जेट हो गया, सैटिन शिमरी साड़ीज़, या फिर बनारसी और कांजीवरम सिल्क साड़ीज़. ये सब आपको फैब्रिक्स एब्सोल्युटली अवॉइड करने हैं बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द क्लॉथ. Remember, we do not have to draw attention to simple basic, और उसी से हमारे कलर्स भी जुड़े होंगे. Once you selected the fabric, the colors are also supposed to be basic, neutrals, pastels, ऐसे कलर्स में जाएंगे. बेज हो गया, ब्लैक भी आप ट्राई कर सकते हैं अगर आपके पास ऑलरेडी एक साड़ी है, but that has to be very simple. Alright, do avoid bright colors, yellows, dark yellows, chrome yellows, reds, bright pinks, candy pinks, fluorescent greens, ये सारे colors avoid करने हैं. That is drawing attention to you. Go for beiges, off whites, browns, earthy tones, pastels, baby pinks, baby green, baby blues. ये सारे colors will be more appropriate for an interview. When we talk about designs, तो obviously बहुत ही simple designs होने चाहिए. Geometrical हो सकते हैं, hand printed हो सकते हैं. अगर plain है तो well and good. मेरी first recommendation है कि plain हो, जिस पे कोई खास design नहीं होना चाहिए. I'll try to put a few pictures also so that it gives you a little bit of idea कि plain, solid, single color sarees बहुत ज़्यादा professional look देती हैं. That is what we are aiming at also. Smaller prints, एब्स्ट्रैक्ट, ज्योमेट्रिक या फिर कोई चिकनकारी, लखनवी हैंड प्रिंट्स भी आप यूज़ कर सकते हैं. जिनको बिल्कुल अवॉइड करना है वो है रफल्ड साड़ीज़, जो आजकल बहुत ट्रेंड में है. वो रफल साड़ीज़ बिल्कुल अवॉइड करनी है. सीक्वेंस साड़ीज़ जो बहुत ज़्यादा शिमरी हैं, जिनका बॉर्डर है, जरी बॉर्डर्स हैं, ब्रॉड बॉर्डर्स हैं, बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी है, काम है, वो वाली चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करनी है. अपार्ट फ्रॉम दैट, गोटा पत्ती, बिग बॉर्डर्स, बांधनी साड़ीज़ और फंकी डिज़ाइंस, ग्लिटर, शाइनी, फुलकारीज, ब्राइट कलर्स, या भी बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइंस लाइक कार्टून्स, बहुत ही ज़्यादा अतरंगे से स्टाइल्स आपको अवॉइड करने हैं. सो लाइट, पेस्टल, न्यूट्रल कलर्स, सॉफ्ट कलर्स should be your first choice, and everything bright should be avoided. So now when the sari is decided, I will try to put a few links of the saris that I would recommend for you, where you can choose your saris from. आपको मैं websites as well as some few links for saris. I will leave the links of those saris in the description box. अगर आपको कोई और सवाल है, obviously you know the drill, put it down in the comment section.
And if you haven't started following me on my Instagram, then do it. I will leave the link for that also here and in the description box. और subscribe नहीं किया है तो कर लो. राइट, लेट्स मूव ऑन टू द ब्लाउज डिज़ाइन. सो जैसे कि साड़ी बहुत सिंपल है, इट्स मोस्ट रिकमेंडेड दैट यू वेयर द सेम कलर ब्लाउज ताकि एक मोनोक्रोमैटिक लुक आ सके. मोस्ट प्रोबेबली डू नॉट गो फॉर वेरी वेरी ब्राइट एंड ऑन योर फेस टाइप्स, जो कंट्रास्ट होता है बहुत ज़्यादा ऑन योर फेस, वैसे नहीं पहनेंगे. फ्लोरेसेंट ग्रीन और पिंक और ये सब जो आपकी ग्लैमर और पार्टी लाइफ में अच्छा लगता है, दैट इज़ नॉट गोइंग टू लुक वेरी नाइस इन योर फॉर्मल सेटिंग. सो अवॉइड दोज. लाइट कंट्रास्ट आर फाइन. यू कैन यूज ब्लाउज ऑफ द सेम कलर, ब्लैक, बेज. नेक जो है उसका बेसिक होना चाहिए, राउंड स्क्वायर ऐसा नेक होना चाहिए, ज़्यादा डीप नहीं होना चाहिए, ना बैक से ना ही फ्रंट से. नो डीप नेक्स और बैक्स. इनफैक्ट मैं ये कहूँगी कि आपको स्लीवलेस भी अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज वी आर नॉट हियर टू जज कि किसका स्लीव्स कितना बेहतर है. तो थोड़ी स्लीव्स होंगी तो बेटर रहेगा. हाफ स्लीव्स, मेगा स्लीव्स, पफ्ड स्लीव्स और डिज़ाइनर स्लीव्स, रफल्ड स्लीव्स, ये सारे अवॉइड करेंगे. ये समझ लीजिए कि बेसिक रहना है, सिंपल रहना है, सेफ ऑप्शन चूज़ करना है. सो नो डिटेलिंग एट ऑल. डोरीज, टैसल्स, कोई भी तरीके का चार्म जो होता है, जो यू सी दोज हैंगिंग्स, कोई भी नहीं होनी चाहिए. इनफैक्ट विदाउट डोरी बनवाएंगे तो भी बेटर है. यू नो दोज कॉलर, शर्ट कॉलर, चाइनीज़ कॉलर ब्लाउजेस होते हैं, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं. एनीथिंग दैट इज़ क्लोज, कंजर्वेटिव एंड फॉर्मल वुड वर्क. Some combinations that I would suggest is you can go for an all blue, an all green, pastel green, basically light colors, and all black. एक monochromatic look जो all same color का बना है, वो सबसे ज़्यादा safe option आएगा. काफ़ी अच्छा भी लगता है. एज यूजल यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर्स अटैच करी हैं, सो यू कैन टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम हियर. कमिंग ऑन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रेपिंग पार्ट, जो कि मैंने कहा है कि अगर आपको ड्रेपिंग नहीं आती है, बहुत सारे ऑप्शन है. यू कैन गो गेट हेल्प ऑफ अ ड्रेपिस्ट, और या फिर आपकी फैमिली से किसी को हेल्प. जस्ट ट्राई डूइंग इट, और ऑन द डे आस्क समवन टू हेल्प यू विद इट. ड्रेप की बहुत ज़्यादा वैल्यू है. इट शुड बी वेल आयर्नड, कोई रिंकल्स नहीं होने चाहिए, वर्न आउट एंड टर्न आउट नहीं होनी चाहिए. साड़ी की लेंथ जो है वो ध्यान रखे, ज़्यादा ऊंची नहीं होनी चाहिए. इनफैक्ट इट शुड बी कंफर्टेबल, इतनी कंफर्टेबल कि एंकल की बॉल जो होती है उतनी लेंथ तक की आपकी साड़ी होनी चाहिए, विथ प्रॉपर 5 to 7 प्लीट्स, सो दैट यू हैव इनफ स्पेस फॉर वॉकिंग. ज़्यादा कम होती है तो वॉक कंफर्टेबल नहीं रहता, और बहुत ज़्यादा प्लीट्स होती हैं तो वो भी अच्छा नहीं लगता. आई थिंक 5 to 8 के बीच में, 6 to 8 के बीच में इट्स अ सेफ ऑप्शन. तो जब प्लीट्स की बात हो रही है, सो हम पल्लू को कैसे भूल सकते थे. इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर्मल इवेंट है, माय रिकमेंडेशन इज़ कि आप उसे नीटली सिक्योर करें पिन के साथ, जो विजिबल ना हो. पिन विजिबल नहीं होनी चाहिए, उसे इन्वर्ट करके पहने. फिक्स होना चाहिए, प्लीटेड होना चाहिए, क्लीन प्लीट्स आप करें उसकी, एंड देन सिक्योर इट विद नीटली आयरन पल्लू होना चाहिए. उसको आप प्लीट से अच्छी तरीके से सिक्योर कर लेंगे. राइट, सो मेक श्योर 3 बेसिक पॉइंट्स आर आपकी प्लीट्स 5 to 8 के बीच में हो. आपकी लेंथ ऑफ द साड़ी शुड बी आपके एंकल का बॉल जहाँ आता है वहाँ तक, एंड उसको आप ट्राई करें एक बार हील्स के साथ. ज़्यादा लंबी हील्स नहीं पहनी, मैं उसकी भी एक गाइड दे देती हूँ कितनी हील्स होनी चाहिए. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट योर पल्लू, इट शुड ऑल बी नीटली डन, नीटली ड्रेप्ड साड़ी, आयर्नड एंड नाइसली सिक्योर्ड. सो चलो, साड़ी की बात हो गई है, फैब्रिक की बात हो गई है, ब्लाउज भी डन है. तो अब चेक करते हैं कि जो उसके साथ जाना चाहिए. सो व्हेन यू गोइंग फॉर अ साड़ी, योर ग्रूमिंग एंड मेकअप, इसके ऊपर भी मैं थोड़ा टच कर देती हूँ. मेकअप जो होना चाहिए आपका एसेंशियल्स होना चाहिए, बेसिक, उसे क्लीन रखें मेकअप को. हेयर स्टाइल अपना नीट रखें. मोस्ट प्रॉब्ली आपको मैं यही एडवाइस करूँगी कि उसे बन में टाई करें, बिकॉज इफ नेयरलाइन आस्क्स यू टू कम इन अ साड़ी, इट्स मोस्ट अप्रोप्रिएट दैट यू गो इन अ बन, नीटली सिक्योर्ड बन. मिड ईयर की लेंथ तक का बन होना चाहिए. नाइस एंड नीटली अवे फ्रॉम द फेस इट शुड बी डन. मेकअप जो है वो क्लीन रखेंगे. नाइस फाउंडेशन बेस कवर होना चाहिए. एक बेसिक लिपस्टिक, न्यूट्रल आई शेडो लगाएंगे, मस्कारा, थिन आई लाइनर, that's all. If you want, you can also go for a bindi that is matching your makeup and your sari. Pastel में very small bindi, it should be negligible, दिखनी भी नहीं चाहिए इतनी small bindi. Go for a small one. बिल्कुल plain bindi pastel या अर्दी टोन में लगाएंगे, और ये मैंडेटरी नहीं है, you can absolutely skip. All right. ज्वेलरी की बात करें तो अगेन मिनिमम रखेंगे. वेयर अ मिनिमम वॉच विद अ स्मॉल साइज और मीडियम साइज डायल. ज़्यादा फैंसी वॉच नहीं होनी चाहिए. आप अपने हाथ में एक वॉच पहन सकते हैं. ज़्यादा ज्वेलरी ना रखें, बैंगल्स वगैरह अवॉइड करें पहनना. इफ़ यू वेयरिंग अ रिंग, मेक श्योर इट्स नॉट मोर देन 1 per hand.
वो भी ज़्यादा फैंसी नहीं होनी चाहिए। गोल्ड की ज्वेलरी है जो ज़्यादा फैंसी नहीं है, स्टोन्स नहीं है, फ्लैशी नहीं है, वैसी ज्वेलरी आप रखें। सो रिंग एट द मैक्स, टाइम के लिए वॉच रखें। अपार्ट फ्रॉम दैट द अदर पीस ऑफ ज्वेलरी दैट यूल हैव इज़ ईयरिंग्स। तो ईयरिंग्स के 2 सेफ ऑप्शंस हैं, कुछ भी ज़्यादा ओवर फैंसी के लिए ना जाएं। हैव पर्ल ईयरिंग्स, स्टड्स होते हैं या फिर गोल्ड स्टड्स होते हैं, वैसे सिंपल ईयरिंग्स आप पहने, ज़रूर पहने, इट मेक्स अ डिफरेंस। फुटवेयर की बात आ रही है तो यू नो सारी हैज़ टू गो विद हील्स बिकॉज द वॉक ऑल टुगेदर चेंजेस। सो येस, हील्स पहनेंगे बट यू विल नॉट फॉरगेट कि जो गाइडलाइन है हॉस्पिटैलिटी या एविएशन की काफ़ी सिमिलर है। गो फॉर क्लोज्ड कोट शूज़ जो आप अपनी स्कर्ट्स और वेस्टर्न फॉर्मल्स के साथ पहनते हैं, दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी फाइन। डू नॉट गो फॉर पीप टोज, स्टिलेटोज। हील्स की जो गाइडलाइन है वो 1.5 इंच to 2 इंचेस तक हो। ब्लॉक हील्स हो तो बेटर रहेगा, कवर्ड शू होना चाहिए। टोन्स आप अर्दी चूज़ करेंगे, वही ब्लैक, ब्राउन, टैन, ये टोन्स ही आप सिलेक्ट करें। द सेफेस्ट ऑप्शंस फॉर्मल भी लगते हैं। कोई सैंडल्स, चप्पल्स, प्लीज़ अवॉइड इट। इफ़ यू वांट an in-depth guide, I will link the videos for my grooming guides which are very similar in the description box. Go ahead and check them out. All in all, I think I've concluded everything. Covered your jewelry, your shoes, sari types, blouse types, what fabrics. मेरे ख्याल से मैंने काफ़ी कुछ कवर कर दिया है। आई एम श्योर मैंने काफ़ी कुछ कवर कर दिया है। आई विल ऑल्सो पुट वेबसाइट्स काफ़ी ईजिली अवेलेबल, काफ़ी अफोर्डेबली अवेलेबल हैं। यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शन अंडर 3K, 5K, वॉट एवर सूट्स योर पॉकेट यू कैन बाय इट एज पर योर कन्वीनियंस। Amazon, नायका, बहुत सारे ब्रांड्स हैं। एज प्रॉमिस आई विल पुट सम लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर योर रेफरेंस। उसके अलावा इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन अबाउट साड़ीज और गेटिंग रेडी फॉर दैट इंटरव्यू डे, प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। आई विश यू ऑल द बेस्ट। और एक और चीज़, कंफर्टेबल, formal and professional approach kabhi nahi bhule. With that said, I will bring this video to an end. I will see you in my next one. Till then, take care and bye bye.